अगर किसी के पास हर महीने 500 रुपये है स्पेंड करने के लिए, व्हाट इज़ वन थिंग दे शुड डेफिनेटली बाय इट फॉर द स्किन? देखिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है. हर इंसान का स्किन रिक्वायरमेंट अलग होता है. It lot depends on your profession, on the kind of exposure that you have, the kind of genetic makeup you have. For example, अगर मेरी बेटी है और उसके चेहरे पे एक्ने है तो उसके लिए ये 500 रुपये एक्ने का इलाज सबसे ज़रूरी हो जाता है. किसी का अगर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए सनस्क्रीन और पिगमेंटेशन को क्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये बोल पाना कि इतने ये जनरलाइज करना ठीक नहीं है. लेकिन अगर आप हेल्दी इंसान हैं तो आपके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है. एक क्लींजर, एक अच्छा माइल्ड क्लींजर, ताकि आपके पोर साफ़ रहें, जो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है वो आपको ना लगे. एक अच्छा सनस्क्रीन, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय यूवी रेज जो हमारे स्किन को डैमेज कर रहे हैं. और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र. जो हम फेस को वॉश करते हैं, हमारा जो नेचुरल ऑयल है फेस का, जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए. तो एक अच्छा सनस्क्रीन, एक अच्छा क्लींजर, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, दीज आर 3 essentials for your skin care which should be done by all. Besides that, if you have any specific concern, somebody has pigmentation, somebody has dark circles, somebody has acne, somebody has loose skin, that can be added to this regimen. The basic regimen should remain same. Cleansing followed by moisturizer followed by sunscreen in the morning. Cleansing followed by moisturizing at night. If you do itself this, and lot of hydration, lot of drinking water, because 70 to 80% of our body is made of water. So if you drink enough water, that itself is good enough for hydration from within. Right. So these all factors I think play a role. अगर किसी का लाइक इंडोर काम है सारा, लाइक ऑफिस जॉब्स एंड ऑल, उनको भी SPF लगाने की ज़रूरत है? बेटा, इसमें 2 चीज़ है. एक तो ये है कि UV रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू विंडो पेन्स. तो इट इज़ अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन. अगर हम घर के अंदर भी हैं तो जो लाइट आ रही है उसमें UV रेज कैन पेनिट्रेट. सो दिस इज़ वन. सेकेंड है कि इवन द लाइट दैट वी आर सराउंडेड बाय दीज बल्ब्स एंड ऑल दैट, they also emit certain kinds of infrared radiations which damage. So अगर आप आजकल सनस्क्रीन देखें वो दिखता है UVA, UVB and infrared protection, blue light protection. So gradually we are realizing that the amount of exposure of lights we are having, the amount of exposure because of laptops, because of phones, constantly on phone, constantly on laptops, the life that it has become, definitely it's doing some kind of damage to your face. It may not be quantified like a sunlight, but definitely it's doing some effect. And therefore, if you use a wide spectrum sunscreen which can protect against UVA, UVB, blue light, infrared spectrum, then you can protect yourself even when indoors it is required. Because indoor में ऐसा तो नहीं है कि आप अंधेरा करके बैठे हैं, आपकी तो लाइट है, बाहर से लाइट आ रही है, that has UV rays in it. So sunscreen should be used by everybody, irrespective of indoor or outdoor work. जो एंटी एजिंग क्रीम्स होते हैं ये सच में काम करते हैं? देखिए, काम नहीं करते तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर जो चीज़ काम नहीं करेगी वो सर्वाइव नहीं करेगी. वी हैव रीच्ड दैट लेवल. आई थिंक द होल वर्ल्ड इज रीचिंग अ लेवल ऑफ वेरी एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस. सो काम तो ज़रूर करती हैं, लेकिन इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है. प्रॉब्लम यह है कि कोई भी क्रीम अगर अपने आप को एंटी एजिंग क्रीम करके बेच देगी तो वो काम नहीं करेगी. देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स. So when we buy an anti-aging cream, we should know, either we should consult a doctor or we should know what ingredient it should contain. You know, there are ingredients like retinols, there are ingredients like hyaluronic acid, there are ingredients like, Q10, there are ingredients like copper, there are ingredients like vitamin C, hyaluronic acid. So these are molecules which help repair. See, होता क्या है कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार का डैमेज होता है. एक होता है जो कि हमको दिखता है. जैसे अगर हमको चोट लग गई तो हमको दिख रहा है कि अरे हमारे स्किन में एक चोट लगी है, डैमेज हो गया है.
उसको हम रिपेयर करने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं कि अभी हमें चोट लग गई, इसको ठीक कर दीजिए. बट लॉट ऑफ डैमेज टू स्किन and our internal organs are happening on a daily basis because of the pollution, because of the sunlight, because of the food that we are drinking and eating, the coffee, the tea, the alcohol, the smoking, and 500 other things, the fried food, the preservatives, the fertilizers used in the food. All these are entering our body. Right. And they are causing damage to our skin layers. एंड दिस डैमेज, जब हम यंग होते हैं तो हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो अगर आपको यंग एज में देखें तो आपको रिंकल नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज पॉल्यूशन तो तब भी है, लेकिन बॉडी इसको रिपेयर करते जा रहा है. लेकिन एक वक्त आता है जब बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म टायर्ड हो जाते हैं. तो तब जब यूवी रेज डैमेज कर रहा है तो स्किन उतने अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाता है, और इसीलिए हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं. एंटी एजिंग क्रीम्स में ये रिपेयर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. एंड इसीलिए अगर आप सही एंटी एजिंग क्रीम्स लगाएं, सही क्रीम्स लगाएं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स. How much it helps depend on the ingredient and what your requirement is. So I think consulting a dermatologist about the right choice of anti-aging cream is very essential, rather than choosing your own in terms of the anti-aging creams.